Hi everyone. Today I'm going to analyze around 3, 4, 5, 6, 7, 8 stocks for tomorrow. Okay. So I'm analyzing 8 stocks. That does not mean you'll be trading in all these 8 stocks. Okay. I found these good entry levels. That's the reason I'm analyzing it. And but what do you have to do out of these 8 stocks? You can find out which one is going to give you a good entry, as in which one you find it suitable. Okay, whichever is it is suitable for you, you can go ahead with that. Okay, so I'll start with HCL take now. Okay, so now HCL take, those who know that HCL take currently is forming double bottom pattern, isn't it? And this is our main neckline is here as well at 947, but this one is going to act as a very good resistance point. So abhi kya karna hai, let's talk about that. How can we take the entry? If whenever it is crossing this level, make sure yahan pe bhi, if you can see, it has crossed but it went down. So what do you have to do? By this you can understand, by every time when the price was coming at this level, जब भी आ रहा था यहाँ पे, ये नीचे के यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ब्रेक किया, अब ऊपर जा रहा है, it is not good. So it means it is acting as a resistance. So for that, a candle has to close above first condition. You can write it down for HCL take. A candle, green candle, has to close above this line, which is at 952. Okay. Now, next thing. Next thing is you have to wait for one more candle. Now, let's say यहाँ पे candle close. Okay, this kind of candle is required for confirmation कि now we can go ahead with the trade. Okay, so we have to get the confirmation, because this is a very good resistance point. So from here the prices may reject. There are high chances to be in the profitable situation. What do you have to do? Whenever the prices are getting rejected at this level, somewhere here your entry will be, and the stop loss is going to be 4 to 5 rupees, or a candle closing below this. A candle closing below this, like this candle closing below this, not like this one. Be careful with this one. Okay, so then you can go ahead and buy, and you can expect this stock to reach this level only, around 8 rupees. Yeah, till 961, because here there is a very good resistance, if you can see. So as soon as it is coming in this area, it may get rejected, so you have to be careful. Now for the sell side, how can we go ahead and take the entry for sell side? For sell side, this is the level, as in 941. Now it has to close below this level, 941 closing we need. Okay, after closing, either it should be a bearish pin bar formation, as in a candle like, which candle I can say, bearish pin bar, a candle like this, a candle like this, not a candle like this, as in a wick towards uptrend, towards upside, then that is good for to go. So that's how you can trade in HCL take tomorrow. And to add up on these things, this is a time frame of 15 minutes, so you have to wait for 15 minutes closing, and the retest thing can be done in 3-minute time frame and 5-minute as well. We don't need to require the 15 minutes only, that only in 15 minutes. No, you can go for 5 minutes as well. And one more important thing over here, that one new batch of batch 3 of advanced price action has been starting from 16th of February. So those who are interested and want to take up the career in stock market as an independent trader, or those who are having job also and they want to do in swing trading, you can DM me on Instagram, and it is going to be very useful for you. You can, I guarantee you that you'll be making good money if you'll follow all the rules which I say. And if you'll still not be able to make money, as in, if I'm telling you something to follow and you're still following the same, but still you're not able to you're not able to make money, you can connect with me once again, and I will be refunding your amount. Okay, now coming to the ACC, the market is in sideways. This is a very good support point, and this is a very good resistance point. Now those who know about support and resistance point, they know कि अभी यहाँ से
कब एंट्री लेनी है, ठीक है। अ कैंडल क्लोजिंग, करेक्ट, एक कैंडल क्लोज होगा, प्रॉपर कैंडल, कैंडल लाइक दिस बिलो 1720, ओके, 1720 के नीचे एक कैंडल क्लोज होना होगा। एंड फॉर दैट प्लीज पिवट पॉइंट्स देख लेना अपना, कि अगर पिवट पॉइंट्स यहाँ है तो दैट कैन बी वहां पे एंट्री नहीं लेना, पिवट पॉइंट्स के क्रॉस होने के बाद एंट्री लेनी है हमें। सो इसके बाद क्लोज हुआ 15 मिनट्स से, एंड उसके बाद देखो कि कुछ रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट में विच काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन वी रिक्वायर, दिस काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन वी रिक्वायर, जहां पे लंबा सा विक होगा, दैट यू कैन टेक इट अप, ठीक है। एक देन ओनली वी कैन गो अहेड एंड द सेल साइड, सेलिंग के लिए हम लोग जैसे कि यहाँ पे एंट्री मिलती है, लेट्स से कहीं भी तुम्हें एंट्री मिल रही है यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, एंड एंट्री हमें यहाँ पे मिलेगी, स्टॉप लॉस हमारा इस रेंज के जो भी उस दिन का हाई होगा उस लेवल के हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड लेट्स सी एंट्री हमें एट वी गॉट इट एट 720 समवेयर, 10 रुपीज का है, एंड हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है 1690 तक, अगर अच्छा मूवमेंट मिला तो वी कैन इजीली गेट इट दिस लेवल, ठीक है। बट हाँ, द स्टॉप लॉस, द टारगेट हैज टू बी मॉडिफाइड इफ there is any rejection or if the prices are getting support. Abhi, what can happen in the market, nobody knows. So if there is any, the prices are getting support, then you have to modify your target and always trail your stop loss. Let's say if the price has come till 20 points, you have got trail it till here somewhere nearest other support point, correct? So you have to do that. Now one more thing, how can we go for the buy side? Easy, yahan se same thing, rejection, go for the buy side. You need a candle in 15 minutes has in a bullish pin bar like this candle and go for the buy side, and the stop loss will be the same. The target is not going to be that much, but first target is going to be around this level, and the second target is going to be this level. That's how you can trade in ACC perfectly. Asian Paints. Now Asian Paints is following currently a descending triangle. So in descending triangle, what happens? It has been taking support from long time. Here also it has taken support in December, if you can see. And previously it would have taken as well. Okay, I'll not go back to the very old chart and check whether it has taken or not, because the prices have been falling. बट अभी करेंटली देखोगे तो एक यहाँ पे आके बार बार इसको सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये लेवल जो है हमारा बहुत अच्छा है। नाउ ये ब्रेक कर तो गया है, कैन वी गो अहेड एंड शॉर्ट सेल हियर? नो, वी कैन नॉट, वी नीड अ कंफर्मेशन। अनटिल एंड अनलेस 2370 का ये ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करना होगा तो या तो हमें लंबा सा विक चाहिए टुवर्ड्स अप ट्रेंड, या फिर परफेक्ट रेड कैंडल, like candle like this, a candle like this is required, candle like this is required to go for the short selling, or else we cannot go for the short selling. और हम जब भी शॉर्ट सेल के लिए जाएंगे तो हमारी एंट्री एट दिस लेवल, एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होगा, 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम लोग नहीं रखेंगे। द स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स, और जो भी उस टाइम का नियरेस्ट हमारा सपोर्ट और पीवोट होगा, जैसे कि मान अभी स्विच ऑन करता हूं मैं पीवोट, तो मैं देखूंगा कि पीवोट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसके जस्ट ऊपर करूंगा 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एंड मेरा टारगेट होगा, लेट्स से ये क्रॉस कर जाता है तो प्रीवियसली हम देखेंगे कि उसके बाद इसको कहाँ सपोर्ट मिल रहा था, इस लेवल पे, एज इन 2370 को हटा, अगर ये क्रॉस करता है तो 2360, जस्ट गो बैक, 2370 पे तो हमारी एंट्री है, ठीक है। तो हमारा उसके बाद तो फ्री फॉल है, उसके बाद तो जो हमें सपोर्ट 3 मिलता है वो उठा लेंगे हम, ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको क्रॉस करेगा हम लोग, वी कैन गो अहेड एंड टेक द एंट्री इन एशियन पेंट्स। एंड टू गो फॉर द बाय साइड, it has to cross this level to 2400 actually,
ठीक है, 2400 क्रॉस करेगा, वी कैन गो अहेड एंड टेक, यहां तक हम लोग इजीली ले सकते हैं, विच इज अ 2424। ठीक है, सो बाई साइड के लिए हम लोग, इफ यू आर गोइंग फॉर एन एंट्री फॉर बाई साइड, स्टॉप लॉस हमारा जो भी उस टाइम का पिवोट का सपोर्ट नियरेस्ट होगा वो देख लेंगे एंड वी विल गो। यहाँ पे रख के हम लोग यहाँ तक का एंट्री हम लोग ले सकते हैं एंड जस्ट वॉच इट कि यहाँ पे जब भी आएगा इट गोइंग टू गेट रिजेक्टेड। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड इन एशियन पेंट्स। नाउ कमिंग बैक टू एक्सिस बैंक। Axis Bank, no, the Axis Bank was not my watch list. Tata Steel, yeah. So Tata Steel, अभी just मैंने story post किया Tata Steel का, I was back testing this from last 2 months how it has been giving me entry or not. So it was giving me a good entry. ठीक है, now let me delete all these things. So Tata Steel ascending channel form कर रहा है. So what will happen now कि अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रेड कैसे करना है? पहला ट्रेड हमारा शॉर्ट सेल के लिए होगा क्योंकि मार्केट ये लेवल जो है ब्रेक कर दिया है। जब ये ब्रेक किया है तो अब तो नीचे आना चाहिए। नीचे देखो यहाँ पे भी ब्रेक किया, इस काइंड ऑफ कैंडल, रिजेक्शन कैंडल हमें ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, लेट्स से ऐसा ऐसा रिजेक्शन मिला हमें। ठीक है, सो गो अहेड एंड टेक द ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल शॉर्ट पोजीशन के लिए, यहां से ट्रेड लेना एंड हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा एंड टारगेट यहां तक तो होना चाहिए, बट उस टाइम हमें जहां तक मिल रहा है, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली हम लोग ले सकते हैं 8 to 10 पॉइंट्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मार्केट जैसा हमें दे देगा। बाई साइड के लिए हम लोग कब ले सकते हैं? बाई साइड के लिए सेम थिंग, यहां से देखा मार्केट ऐसे क्रॉस होता गया, क्रॉस होता गया। ठीक है, तब हम लोगों ने एंट्री ली, ये यहां तक आया, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना। सो यहाँ पे अगर सेम पैटर्न बनता है तब हम लोग वी कैन गो अहेड एंड टेक द एंट्री फॉर बाई साइड, बट पहला कॉल होगा हमारा सेल का ही, उसके बाद ही हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज वी विल नॉट बी गोइंग फॉर बाई इफ यहां से बाउंस बैक कर गया, बिकॉज यहां से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट लेवल, दैट ट्रेंड लाइन लेवल, दिस ट्रेंड लाइन लेवल। ठीक है, so Tata Steel, I am going to trade tomorrow in Tata Steel. Let it be which side it is going to give me entry, and depending on the risk and reward, I'll be taking the entry. SBIN. SBIN is also not in my watch list. How many stocks I have given? HCL, ACC, Asian Paints. Okay, 3 स्टॉक, 4 हो गया, 5 6 है। Sorry, I told 8. SBI1 was not in my entry. ठीक है, now TCS का दो चीज, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है फॉर्म हो रहा है, जिधर से भी ब्रेकआउट होगा यू विल बी टेकिंग द एंट्री, एंड इस साइड से ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इस साइड के लिए लेंगे। तो अगर लेट्स से पहले सेल के लिए, तो यहाँ से इसको मान लो ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, 3, लाइक इट इज वेरी गुड स्ट्रांग, बिकॉज इफ यू सी बार बार यहाँ से यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, ब्रेकआउट एट दिस लेवल एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक प्राइसेस टू कम डाउन टिल हियर, एंड हमारा स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस होगा, तो 1:1.5 के आसपास मिल रहा है, और ज्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। नाउ सेकेंड थिंग, इट इज फॉर्मिंग बेयरिश पेनेंट। बेयरिश पेनेंट में क्या होता है, एक मार्केट गिरता है, थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करता है, पेनेंट की तरह ये फॉर्म करेगा एंड उसके बाद वापस से नीचे गिर जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज फॉर्मिंग करेंटली। नाउ गोइंग फॉर द बाई साइड, अभी हम लोग बाई के लिए कैसे जाएंगे? बार बार इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्रॉस करेगा, हम लोग एंट्री ले लेंगे रीटेस्ट पे एंड हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा जो भी नियरेस्ट पिवट पॉइंट के आसपास रहेगा, और इस लेवल पे हम लोग लेंगे क्योंकि यहां से इसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही ये क्रॉस करेगा। इसको सी, ये वाला लेवल पहले से ही आता होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको ये इस लेवल पे सपोर्ट मिल रहा था, पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है, अब सपोर्ट मिल रहा है, तो जब भी नीचे आएगा इसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का होगा, टारगेट लगभग 20 पॉइंट्स के इजीली हमें मिल सकता है टीसीएस में। अगर ये सेल की तरफ जाता है तो फिर तो 30,080 तक गिरेगा, कल नहीं गिरेगा 30,080 तक, बट हाँ, सूनर इट इज गोइंग टू फॉल फॉर 100 पॉइंट्स।
Now, Cummins India. It is forming an ascending triangle first thing. ठीक है, तो यहाँ पे इसका सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन जब भी ये इस लेवल पे आ रहा है, द प्राइसेस आर कमिंग बैक, लेवल पे आया नीचे आ गया, यहाँ पे आया नीचे आ गया, यहाँ पे आया नीचे आ गया, एंड सिमिलरली यहाँ पे जब भी ये लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर चला जा रहा है. सो दिस लेवल हैज टू गेट ब्रोकन व्हिच इज एट 795 का लेवल ब्रेक होता है, तो ये वी कैन गो फॉर द बाय साइड. सेल के लिए हमें इसका लेवल जो ब्रेक होगा, ये डिमांड का एरिया जो है ये ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ से. ठीक है, तो मतलब ये नीचे आना चाहिए व्हिच इज एट 784 के आसपास जो है ये नीचे आता है, तो वी कैन सी इट कमिंग डाउन टिल दिस लेवल 65 तक आ सकता है. ये हमारा सबसे लास्ट टारगेट होगा, बट हमारा फर्स्ट टारगेट हम एंट्री लेंगे 785 के आसपास भी. ठीक है, तो हमारा ये लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे हम लोग एंट्री हमारा अपना टारगेट रख सकते हैं. सो बाय के लिए जाएंगे तब तो हमें ऊपर से क्रॉस करना जरूरी ही है, देयर इज नो अदर गो, एंड हमें वैसा एंट्री लेना होगा. सेल के लिए जाएंगे तो 7 ये हमारा टारगेट है, एंट्री हमारी समवेयर यहाँ पे हो सकती है, एंड स्टॉप लॉस होगा जस्ट जो भी हमारा उसका पिवट पॉइंट होगा वहां पे हम लोग ले लेंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड इन दीज स्टॉक्स. SBIN एंड एक्सिस बैंक गलती से आ गया था, मैंने उसको हटाया नहीं, अपॉलॉजी फॉर दैट. एंड या SBIN में वैसा कुछ उसका रिजल्ट्स के बाद से 348 से इट हैज मूव्ड वे टू हाई, या तो वो बैक गैप कवर करेगा. ठीक है, गैप कवर करने के लिए या सी ये लेवल जो है इसका क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह. SBN बहुत टाइम के बाद इतना ऊपर गया. ठीक है, शो यू इन द चार्ट एज वेल, 1 मंथ का चार्ट ऑन करूंगा अभी. ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ ये लेवल्स का सपोर्ट ये ब्रेक करेगा ना 387, ये मार्केट नीचे करके ये गैप कवर कर लेगा. ठीक है, नाउ फॉर एक्सिस बैंक इन शॉर्ट, एक्सिस बैंक का ये जो लेवल है एट 710 इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट. सो सेल के लिए जाना है तो इसके नीचे जाना होगा, बाई के लिए जाएंगे तो अगर रेजिस्टेंस ऐसा मिल गया हमें तो हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं. इन शॉर्ट एक्सिस बैंक और SBIN का था सेम. अभी मैं SBIN को दिखाता हूं इन विच टाइम फ्रेम, 1 मंथ. नाउ लास्ट टाइम भी गया या फिर इट इज ऑल टाइम हाई ओनली, आई बिलीव सो. ये फर्स्ट टाइम जो है SBIN हैज टच, सो इट इज ऑल टाइम हाई. जब से ये आया है ना तब से ये हाई इतना बनाया नहीं. सो इट इज वेरी क्लियर. तो अभी इसके ऊपर जाने का कोई हमें रेजिस्टेंस का अता पता है नहीं, हमारा मेन जो सपोर्ट है 385 के आसपास ही है. सो वो ब्रेक करता है SBIN नीचे आएगा. Okay, so that's all. So if you are interested in the advanced price action, you can DM me in the on Instagram का पेज का नेम दिया हुआ है, you can check it out. Thank you so much guys.